Well, now this is the module in which we will learn how to prepare a statement of other comprehensive income where we will have revaluation gain of a fixed asset, of an item of property, plant, and equipment. All right. And here we know very well that when we dispose of a revalued fixed asset, the fixed asset or the item of property, plant, and equipment, which was earlier revalued at its fair value and left a gain, which was obviously an unrealized gain, उसको अगर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं इन द रिपोर्टिंग पीरियड, तो हम उसे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में. So your attentions would be required to understand this scenario in which we see that there are few assets appearing in our balance sheet of 20x1, and we are saying that it is the first year of operation of this organization. Here we have a showroom building and a factory building. The showroom building was purchased in the first year for 50 million. This is rupees in thousand, okay? 50 million. And the factory building was purchased for 500 million. We know very well that initially it is recognized at cost. It is measured at cost. At its recognition, हमने इसकी cost determine कर ली. And on the reporting date, हम उसको fair value model पर, revaluation model पर लेकर आना चाहते हैं, जिसके लिए हम fair value पर उसे measure करेंगे. So we have its fair value 85 million for the showroom building and 600 million for the factory building, which is leaving a revaluation surplus of 135 million. All right? तो ये तो है situation हमारे fixed assets की. अब इस situation को हम statement of other comprehensive income में किस तरह से show करेंगे? All right, the net income, the profit for the year of 20x1 is 650,000. Okay, in a way, let's take it million. Okay, 650 million. Since it is 650 million, तो आपका profit for the year तो उस तरह से statement of profit loss से आ गया. इसको हम बिल्कुल भी disturb नहीं कर रहे. Well, साथ ही हम बनाएंगे statement of other comprehensive income, और portion कौन सा है? That will not be reclassified subsequently to profit. When we are saying subsequently, we have discussed this thing in earlier modules कि इसका मतलब है upon derecognition. Okay, upon derecognition आप उसको statement of profit loss में नहीं लेकर जाएंगे. कहता अभी की जो situation है revaluation surplus जो 135 का आपने लास्ट स्लाइड में देखा, 135 जो आपका revaluation surplus for the year अकाउंट फॉर हुआ, उसे आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो कर दिया, और यूं आपके पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 785 मिलियन की आ गई. बात आगे बढ़ाते हैं. कहता है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 20x2 सैंपल कंपनी सोल्ड शोरूम बिल्डिंग फॉर 110 मिलियन. 110 मिलियन पे उसने उसको सेल कर दिया एंड रियलाइज्ड अगेन on its sale of 25 million. 110 minus 85. 85 you know very well कि last year की closing पर उसको 85 million पे हमने revalue किया था, और according to IAS 16 हमने उसकी gross carrying amount जो है वो 85 million पर ले आए थे. अब चूंकि ये काम last year की closing date पर हुआ और अब करंट ईयर में आते स्टार्ट में ही हमने उसको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो इट मींस कि इस पे आप कोई डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट नहीं है. वही उसकी कैरिंग अमाउंट जो है वो 110 में जब सेल हो रही है, तो लीविंग अ प्रॉफिट ऑफ 25,000, इट इज रियलाइज्ड गेन. एसेट को बेचने से जो हमें कैश रियलाइज होता है, विच इज रिपोर्टेड एज अ रियलाइज्ड गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ द सेम एसेट shall be transferred to retained earning. Now जितना भी revaluation surplus पड़ा हुआ था, by the way you can recall कि ये 85 million का
एसेट कॉस्ट कर रहा था 50 पे, तो उस वक्त 35 मिलियन का जो था इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस था। उसके बारे में ये बात कर रहा है कि उसको रिटेन्ड अर्निंग के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नहीं लेकर जाएंगे बल्कि रिटेन्ड अर्निंग में लेकर जाएंगे। और वो कह रहा है कि डेप्रीसिएशन जो फैक्ट्री बिल्डिंग की है उसको 5% पे आपने वर्कआउट करना है, क्योंकि वो फैक्ट्री बिल्डिंग जो है अब आपकी डेप्रीसिएट होगी, इस पूरा साल वो उसे आपने इस्तेमाल किया। एट द एंड ऑफ X2 सैंपल कंपनी इस तरह से अपने एसेट्स को रिपोर्ट करेगी। नाउ इट हैज ओनली वन एसेट विच इज द फैक्ट्री बिल्डिंग, ओके, और उसकी 5% डेप्रीसिएशन इस साल में उसने इस्तेमाल किया एसेट। 5% डिप्रीसिएशन करके उसकी नेट बुक वैल्यू WDV जो है 570 मिलियन की नजर आ रही है। ऑल राइट, द इंपॉर्टेंट पोर्शन इज दिस स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इस साल हमें जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है दैट इज 800 मिलियन, पिछले साल का 650। अब इस 800 मिलियन में हम 25 मिलियन का जो है वो प्रॉफिट जो रियलाइज किया है बाय सेलिंग द शोरूम बिल्डिंग वो हम दिखा चुके हैं, इट इंक्लूड्स इट, ओके। ये रियलाइज्ड प्रॉफिट्स इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नजर आ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नजर आ रहे हैं। वेल, इस साल हमने कुछ भी उसको रीवैल्यू नहीं किया, क्योंकि IAS 16 के मुताबिक, IAS 16 दोबारा से रेफर कर रहा हूं, अगर मटीरियली डिफरेंट नहीं होगी हमारी फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से तो हम उसको रीवैल्यू नहीं करेंगे। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बिल्कुल भी कोई रीवैल्यूएशन नहीं हुई। ऑलराइट, जो इंपॉर्टेंट अब इसमें आपने अकुमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अकाउंट को देखना है, वो क्या है? आपका ओपनिंग बैलेंस अकुमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का 135 जो पिछले साल से आपने इसको यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड किया। रीवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर 0 है, ओके, देयरफॉर वही 135 आपका रहा। और जो आपका एसेट बिक गया, revaluation surplus of the showroom 35, as I was telling you in the earlier slide कि ये एसेट हमारा 85 की फेयर वैल्यू पर था और इसकी कॉस्ट जो थी that was 50, left a revaluation surplus of 35, चूंकि डेप्रिशिएट वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ था, therefore 35 मिलियन अब यहां से निकाल के आप कहां लेकर जा रहे हैं? रिटेन्ड अर्निंग में। इसको रिटेन्ड अर्निंग, ओके, RE is retained earning या retained profit whatsoever, ओके। आप retained earning में इसको ले जाएंगे, retained earning क्रेडिट हो जाएगी। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इफेक्ट, जितनी भी एक्सेस डेप्रीसिएशन होती है, आपने जो अब डेप्रीसिएट किया है अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग को, अगर उसको कॉस्ट पे डेप्रीसिएट करते तो वो 25,000 की डेप्रीसिएशन होती। आपने उसको फेयर वैल्यू यानी कि रीवैल्यूड अमाउंट पे डेप्रीसिएट किया तो वो आपकी 30,000 मींस 30 मिलियन की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हुई। एक्सेस डेप्रीसिएशन 5 मिलियन की वो आप यहां से इसको डेबिट करेंगे और आप रिटेन्ड अर्निंग्स में उसको क्रेडिट करेंगे। ये इफेक्ट आप दिखाएंगे अपने उन एसेट्स को जो कि रीवैल्यू हुए होते हैं जब आप रियलाइज कर रहे होते हैं टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन। क्योंकि देखिएगा, अब वो एसेट जब भी कभी बिकेगा तो उसकी नेट कैरिंग अमाउंट कहां से ली जाएगी? बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट में उसके वहां पर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो फेयर वैल्यू पर वर्कआउट हुई हुई है, और इतनी एक्सेस डेप्रिसिएशन आपने उसकी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट कर दी हुई है। और आपने इस मरतबा के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी ज्यादा डेबिट कर दिया था, जिसकी वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गई थी। वो अब आपने अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाया इस 5 मिलियन से जो कि एक्सेस डेप्रिसिएशन थी। ऑलराइट, तो इस पूरे सिनेरियो में जो हमने लर्न किया वो ये था कि हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की आइटम्स जो रीवैल्यू हुई होती हैं उनको जब डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उनका जितना भी अनरियलाइज्ड गेन यानी कि अनरियलाइज्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस जो आपका अकुमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मौजूद होता है, उसको वहां से आप निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में लेकर जाते हैं, प्रॉफिट और लॉस में नहीं लेकर जाते। इट इज अनलाइक विद द अर्लियर सिनेरियो दैट वी डिस्कस्ड
as practice 1 in the earlier module.